हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 में कल हम लोगों ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर पढ़ा था। आज हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं एंड विल टॉक अबाउट इट्स डेरिवेशन एंड लेट अस सी हाउ मच यू कैन अंडरस्टैंड दिस। There are few very easy questions for you. Then we will start today's class. So there are 3 true and false questions. So I will discuss one by one, and then you can tell whether it is true or false. So there are two. You see in this picture, question number 1. In this picture, there is two material A and material B, and this is its sorry, it's a band diagram. So you see the band, this is filled, this is filled, this is filled, and this one is half filled, half empty, and this one is this. So by looking this, you see, judging from filled bands, material A is an insulator. So is it true or false? क्या कहो? सर फॉल्स सेमीकंडक्टर है सर। फॉल्स है सर। सेमीकंडक्टर False. Yeah, first of all, A is false, but it is, we can't say it is semiconductor because this, you see, this band is half filled. Partially filled, Half sir. filled Yes, sir. means this is conductor. Conductor के केस में क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड होता है और बैलेंस बैंड होता है वो ओवरलैप करता है, या जो ये बैंड है ये ऑलरेडी इसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है, तो दिस इज this is not insulator, this is conductor. This could be, the material B could be a semiconductor. If this band gap is large, then it will be an insulator. So material A is not an insulator. So first one is false. So you are all correct. And then you see, this is second question. Shining light on a semiconductor should increase its resistance. So is it correct or false? सर ट्रू है सर। True. Yes, sir. True. सर ट्रू। ओके, तो जैसे क्या हो रहा है, हम बढ़ा कल दे रहा है। बात कर रहे थे कि सेमीकंडक्टर में जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है, अगर हम कुछ एनर्जी देंगे तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड चला जाएगा एंड इट विल जनरेट एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर, और वो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। और जब किसी चीज की कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और शाइनिंग लाइट मतलब इन अ वे वी आर गिविंग एनर्जी टू द Energy. So if we give energy, then its conductivity will increase, then it means resistance will decrease. So this is true. So you are all correct. Okay, then let us read third one. Third one says the band gap is certain location in a semiconductor that electrons are forbidden to enter. Is it correct or wrong? ट्रू सर। Where's it true? Okay, so this is actually not true. Band gap is not a location. ये energy range होता है। कुछ energy, electrons are not allowed to take certain energy values. This is not location in semiconductor. In semiconductor, they are semiconductor made of these atoms, and these electrons and holes are free to go anywhere. It is not, band gap is not a location in semiconductor. It is energy values of electrons that are not allowed. Okay, so I hope you understand, and almost you are learning and understanding things. So this is how we can assess that you are with me, means what I'm trying to teach you, you are learning, and so in this way it is like you also like it when we have some question answer kind of thing.
So now we'll proceed, and 37 students have joined us in the class. So I don't think anybody is now busy with this test and thing. So we will proceed for our discussion. We will be discussing today this density of a state thing, and we'll go through its derivation, and let us try to see how much you understand, because the derivations involve quantum mechanics and a lot of things are there, but we have to do some of the derivations. But you should not be worried if you find it bit मतलब अगर बहुत इजी नहीं लग रहा है तो ये बहुत इजी है नहीं, इसलिए इजी नहीं लग रहा है. पहले हम लोग बात कर रहे थे, कल हम लोगों ने इसकी बात किया कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होता क्या है. डेंसिटी ऑफ स्टेट वी डिफाइन दैट इट इज एसेंशियली नंबर ऑफ different states in a particular energy level that electrons are allowed to occupy. That is number of electron states, this thing, the number of electron states per unit volume per unit energy. This is how we are defining density of states. So then in this picture it shows this for bulk material. We will not discuss it as of now. Later in later unit we will have this. So then we will go, we will come back here and we'll see. So here for bulk material, कोई semiconductor है, तो उसमें density of states varies as e to the power half. This is how density of state. If we plot density of state versus energy curve, we will have parabola, and this is how it is related. So what we are going to do, we are going to see how this thing comes, कैसे ये relation develop हुआ. And in order to understand this, we need some concepts, and let us see this. Let us proceed the discussion. So we are going to discuss this derivation. So it needs quantum mechanics. The density of states gives number of allowed electrons, and similarly in semiconductor, electron and holes both are both participates in the conduction process. So here we will calculate for electrons, and similarly that there can be an expression for holes. So we will not derive it, we will take it as similarly. So for electrons, density of state gives number of allowed electron states per volume at a given energy. So this is how it is defined, and it can be derived from basic quantum mechanics. So quantum mechanics is like basis for in this language we will be doing this derivation. So there will be a few things. Since you didn't have a quantum mechanics course before doing this, so we will be doing some preliminary kind of thing. We will try to understand it is, and just try to comprehend as much you can. तो जैसे हमने बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या होता है कि हम कोई भी पार्टिकल होता है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना उस पर मोमेंटम लग रहा है, ये देखते हैं. लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, हर कोई किसी भी पार्टिकल का कोई भी पार्टिकल या किसी सिस्टम का बात करते हैं तो हम उसका वेव फंक्शन निकालते हैं, और वेव फंक्शन हमको उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन देता है. तो जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन के बारे में बात करते हैं. तो पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड बाय वेव फंक्शन. वेव फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय psi xyz. xyz इज लाइक 3 डायमेंशनल चीज है, तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स के बात कर रहे हैं. तो मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट पोजीशन. तो वेव फंक्शन psi इज फंक्शन ऑफ xyz. The probability of finding the electron at a specific point is given by this. तो अगर हमको वेव फंक्शन पता है तो वेव फंक्शन डायरेक्टली कोई क्वांटिटी नहीं होता, जैसे मोमेंटम कोई क्वांटिटी है, ऐसे वेव फंक्शन इसका कोई डायरेक्ट मतलब ऐसे नहीं है कि ये वेव फंक्शन का मतलब ऐसे है, बट इट हैज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट. तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी पता करना है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज गिवन बाय मॉड साई स्क्वायर. So if we do this, then we can get probability. So where total probability is normalized to 1, मतलब अगर हम पूरे लोकेशन में बात करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगा कि इलेक्ट्रॉन तो उस सिस्टम में है ही.
total probability is given by this formula, this is equal to 1. तो ये यहाँ पे हम लोग इतना जाने कि कुछ इलेक्ट्रॉन है वो वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको पाने की probability is given by अभी ये कंपनी तो गांव साइड में भी पहुंचा रही है फार्मास्यूटिकल का, वो चालू किया है बंगाल। Okay. Then we have this particle in box. हम लोगों ने पहले एक बार डिस्कस किया है कि जब हम लोग पीरियोडिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना चाह रहे थे, तो हम लोगों ने पार्टिकल इन बॉक्स डिस्कस किया था। बट तब क्या था, हम लोग एक मेटल की बात कर रहे थे, फ्री इलेक्ट्रॉन गैस की बात कर रहे थे, अभी हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सिचुएशन उससे डिफरेंट है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। तो पार्टिकल इन बॉक्स, द इलेक्ट्रॉन एट द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड एंड होल्स एट द टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड। तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के बॉटम में है या जो होल बैलेंस बैंड के टॉप में है, वो बिहेव करते हैं फ्री पार्टिकल की तरह। फ्री पार्टिकल मतलब वो होता है कि जैसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जब पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने माना कि इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रीली, कोई उनपे फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के बॉटम में या जो होल बैलेंस बैंड के टॉप में है, वो अप्रोक्सीमेटली फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन एक्चुअली हमको ये पता है कि देयर इज सम पोटेंशियल, सम पीरियोडिक पोटेंशियल इज एक्टिंग ऑन इट। सो दैट इज व्हाई उसको करने के लिए इफेक्टिव मास का कंसेप्ट आता है। हम लोग इफेक्टिव मास के बारे में फिर से आगे बाद में फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ऐसे सोच ले जैसे कि कोई पार्टिकल है, वो किसी सिस्टम में फ्रीली मूव कर रहा है, मतलब उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो उसका कुछ मास है, उसका कुछ एनर्जी है, एंड वी नो दैट। बट नाउ इमेजिन द सेम पार्टिकल इज इन अ मीडियम वेयर देयर इज सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो हम ऐसे सोचे कि जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसका मास कुछ डिफरेंट हो। जैसे कि ऐसे सोचो कोई मीडियम है, जैसे कि पानी में हम कोई लकड़ी का टुकड़ा डालें तो उसका कुछ वजन अलग हो जाएगा। अगर पानी के अंदर हम लोग टच करते हैं तो वी फील डिफरेंट बिकॉज देयर इज डेंसिटी ऑफ वाटर and density of material. There is Archimedes principle comes in the picture, and then you feel it is light. जैसे पानी के अंदर हम कोई चीज को पकड़ के देखें तो उतना भारी नहीं लगता, क्योंकि तो नीचे से बॉयंसी फोर्स अप्लाई होने मटेरियल का लगता एक है। इफेक्ट आ जाता है। तो ऐसे ही एक इफेक्टिव मास का कंसेप्ट है कि वहां पे कुछ पोटेंशियल काम कर रहा है, लेकिन हम लोग उसको फ्री पार्टिकल के तरह ट्रीट करें। अगर हम बोलें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या होल्स हैं, दे आर फ्री पार्टिकल्स, बट उनका मास जो है, इफेक्टिव मास जो कम पानी के अंदर हमको कम मास महसूस होता है, उसको हम माने कि दिस इज एक्चुअल मास एंड दिस इज फ्री पार्टिकल, लाइक दिस। ये एक बनाया टाइप का कंसेप्ट है। तो ऐसे ही हम लोग इफेक्टिव मास का कंसेप्ट समझ सकते हैं। सो यू ट्रीट देम एज ए फ्री पार्टिकल बट मास इज डिफरेंट, सो देन वी से दिस इज इफेक्टिव। ठीक है, तो नाउ वी कंसीडर हियर कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन, और होल्स के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे, एंड बाद में हम बोलेंगे कि ऐसे ही होल के लिए कर सकते हैं। सो दिस इज सिमिलर, सो वी विल डू वन थिंग, वी विल कंसीडर कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन दिस इज E minus EC. E is the energy and EC is the energy of the top of balance, bottom of the balance band. तो E minus EC is this difference of this energy, जो उसका energy वहां पे है, and it is given by H square K square by 2m star. 2m star, m star is basically it is effective mass. So where m star comes in the picture, it means this is effective mass. It is इसके बारे में हम लोग फिर से आगे बात करेंगे, बट यू कैन टेक इट, दिस इज हाउ दिस इज रिलेटेड। दिस एनर्जी इज गिवन बाय this, by k is the momentum vector, h is the Planck constant, and m is the effective mass. So now you think this is a box. So for electron in rectangular volume
Lx, Ly, Lz इसकी 3 डायमेंशंस हैं विद एन इनफाइनाइट कन्फाइनिंग पोटेंशियल। जैसे हम लोग पोटेंशियल इन बॉक्स में पहले हम लोगों ने 1 डायमेंशनल वहां पे कंसीडर किया था, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ 3 डायमेंशनल बॉक्स, क्योंकि हमारा जो केस है दिस इज 3 डायमेंशनल केस। सो वी से दिस इज अ बॉक्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इनसाइड, दिस इज कंडक्शन। जब हम लोग कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, so we consider this is a box which जिसकी ये डायमेंशंस हैं Lx, Ly, Lz, और ऐसा बोलते हैं कि इसके बाहर का जो पोटेंशियल है वो इनफिनिट पोटेंशियल है और अंदर इसके पोटेंशियल जीरो है। सो u x y z is zero inside the box and infinite outside, means all the electrons are confined to live inside this। बाहर का पोटेंशियल इनफिनिट है, मतलब बाहर ये नहीं जा सकते। So the electron wave function psi must be zero on the boundaries, मतलब बाहर इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता तो उसका वेव फंक्शन भी बाहर जीरो हो जाएगा, and take the form of harmonic function within region, the wave function in this form। तो जैसे हम लोगों ने देखा था particle in box का वेव फंक्शन कुछ there was sine function, so you take it like this, the psi is given by the wave function is give like this, sine k kxx, sine kyy, sine kzz, kx kz are this wave vector in xyz direction। So this is how we get wave function for electron, and then kx ky kz are wave vector for electron in xyz direction। The real wave function in a solid is more complex and periodic with crystal lattice, but this is a good approximation for parabolic regions near band edge। तो एक ऐसे approximation के basis पे कर रहे हैं, और real wave function is bit complicated, but we consider a similar nature kind of thing, and so we have this kind of wave function for electrons, and here particle in a box wave function across x direction, orthogonal direction or analogous। तो ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 जब हम x डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन में ऐसे दिखा रहे हैं, तो ऐसा कुछ इसका वेव फंक्शन दिखेगा। सो इनफोर्सिंग द बाउंड्री कंडीशन, नाउ वी यूज द बाउंड्री कंडीशन कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं हो सकता, तो उसका वेव फंक्शन इज व्हेन x y z आर जीरो द साइन फंक्शन गोज टू जीरो, क्योंकि ये तो साइन फंक्शन का प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम x y z जब जीरो करेंगे तो साइन फंक्शन जीरो हो जाएगा। और एट द अपोजिट बाउंड्रीज व्हेन lx ly lz, मतलब जब साइन का वैल्यू lx ly lz है, मतलब ये भी इसकी बाउंड्रीज है, साइन का lx है ly है lz है, तो बाउंड्री पे वेव फंक्शन जीरो हो जाता है। तो वी आर यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, एंड फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी वी गेट ए कंसेप्ट ऑफ अलाउड वेव वेक्टर। सो kx lx की वैल्यू क्या होगी, ये कंडीशन कि साइन kx lx इज जीरो मींस kx lx इज इक्वल टू पाई nx, n पाई, मतलब n का वैल्यू कुछ होगा इसी के कम, ये फ्रॉम दिस बाउंड्री कंडीशन this condition comes in the picture, kx lx is equal to n pi x, ky ly is equal to ny, kz lz is equal to pi nz for these nx ny nz are integer, means जो साइन का वैल्यू, अगर साइन का वैल्यू जीरो है तो दिस एंगल इज मल्टीपल ऑफ पाई, इट कैन बी जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, फॉर ऑल दीज वैल्यूज विल बी जीरो। तो ये साइन फंक्शन का प्रॉपर्टी लेके ये कंडीशन लेके आया। So this is equation 2, and then we are defining what is this k। k क्या है, उसका एक k space define कर रहे हैं। So the allowed states can be plotted, मतलब ये जो कंडीशन आया यहाँ से कुछ अलाउड स्टेट आए k की वैल्यू means there are lx is already fixed, n is the integer, so for k what are values of k which are allowed is given by this condition। So from this condition, we can make an k space. So the allowed states can be plotted on a grid of bottom in k space, a 3D visualization and direction of electron wave vector। ये यहाँ पे कुछ दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी values allowed हैं, ऐसे करके हम एक k space बना सकते हैं। So allowed states are separated by pi by l x। तो ये pi by l x कहाँ से है,
यहाँ पे देखो, if you use this condition, kx is equal to pi by lx and n is the integer, it can be value 1 2 3 like this. So ऐसे ही मतलब कुछ अलाउड वैल्यूज, कुछ ऐसे कंडीशन आया जिससे कि हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कुछ वैल्यूज ही के की अलाउड है। वहीं से हमको अलाउड और फॉरबिडन का कंसेप्ट आया था, जैसे हम लोग क्रोनिंग पेनी मॉडल जब पढ़ रहे थे, तो उसी तरह का कुछ कंसेप्ट यहाँ पे आया कि allowed states are separated by pi by Lx, Ly, Lz in all three directions, and the k-space volume take up by each allowed state is कोई एक, अब इसमें पता चल गया कि कुछ k की वैल्यू अलाउड है, और फिर जो भी स्टेट्स हैं, these are the allowed states, and for each state there is an volume associated from k space. So the k space volume taken by each allowed state is given by pi cube Lx, Ly, Lz. तो ये allowed state का ऐसे वॉल्यूम दिखाया। तो the reciprocal of the state density in k space is v by pi square, where v is the volume of semiconductor in real space. k space जो है वो एक तरह से reciprocal space है, और उसी से एक वॉल्यूम, कुछ अलाउड वैल्यू और अलाउड स्टेट का वॉल्यूम का कंसेप्ट है कि ये इतने के वॉल्यूम के स्पेस के इतने वॉल्यूम में इतने स्टेट्स हैं, देन यू कैन से व्हाट इज द डेंसिटी, काइंड ऑफ डेंसिटी का कंसेप्ट यहां से ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल फॉर अ गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर के इज फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस k and thickness dk. The volume of this spherical cell is k space is given by 4 pi k square and dk is the thickness. कोई भी spherical cell का वॉल्यूम का फॉर्मूला ये 4 pi k is the radius, तो 4 pi r square into this thickness का जो फॉर्मूला है, वहां से ये आ गया। तो हम number of states available in given magnitude, it can be defined by this spherical cell, और उसके वॉल्यूम हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। देन द नंबर ऑफ k स्टेट्स विद इन द स्फेरिकल सेल। अब कोई स्फेरिकल सेल जो हमने कंसीडर किया उसमें हम कितनी स्टेट्स हैं ये बता सकते हैं, उसका वॉल्यूम हम बता सकते हैं। सो देन वी आर डिफाइनिंग समथिंग, द नंबर ऑफ k स्टेट्स विद इन एन स्फेरिकल सेल इज गिवन बाय, लाइक हम इसको इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, gk dk is approximately the k space volume times the k space state density. So gk dk is equal to this 4 pi k square dk and this volume v by pi cube, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो each k state can have 2 electron, जैसे हम लोगों ने बोला कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ होता है, तो प्लस हाफ माइनस हाफ। तो इस वजह से क्या हो गया, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें, नंबर ऑफ स्टेट्स इन वन स्टेट इन वन एनर्जी वैल्यू देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ अपोजिट स्पिन, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वजह से, तो इस वजह से ये इट बिकम्स 2 टाइम्स। So finally there is relatively subtle issue, wave function that differ only in sign are indistinguishable, hence we should count only positive nx, ny, nz states to avoid multiply counting the same quantum state. तो एक कंसेप्ट होता है क्वांटम मैकेनिक्स में डीजेनरेसी का, मतलब हम तो उसको अवॉइड करने के लिए ये कर रहे हैं कि इसको 1/8 से डिवाइड कर दिया। वी डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 1/8, so this equation comes as gk dk and this 1/8 हो गया, तो we have the same thing. So this is the expression for number of unique electron states. इससे हम लोग को ये मिल गया कि नंबर ऑफ कितनी अलाउड स्टेट्स हैं अवेलेबल इन गिवन k over a range dk. The value of k is that wave vector, और डीके रेंज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स, यूनिक इलेक्ट्रॉन स्टेट्स अवेलेबल है। तो वी नीड द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रादर देन वेव वेक्टर, क्योंकि हम लोग को जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो हम लोगों ने डिफाइन किया है एनर्जी के टर्म में, कि कुछ पर्टिकुलर एनर्जी रेंज में कितनी स्टेट्स अवेलेबल है, उसी से हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं।
So how these are related? The momentum wave vector and E is related like this. P is the momentum, h bar k. P is equal to h bar k and E is equal to P square by 2m star. So this is how this momentum and energy is related. So we find this relation of K versus E. ये हम लोगों ने पहले भी डायरेक्टली जब लिखा था वहां पे शुरू में जब हम लोगों ने एनर्जी डिफाइन कर रहे थे तो E is equal to h bar square k square by 2m star. So m star is effective mass. Then we can rewrite this equation using this concept. So E जहां पे हम लोग यहाँ पे E लिख रहे हैं, basically we are talking about this electron in conduction band. So we write this E minus EC is equal to h bar square k square by 2m. This is how we get energy and K related. तो क्या हो गया? Noticing we put this thing here. यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को रखें या E माइनस EC यहाँ पे लिखें तो ये लिख सकते हैं K स्क्वायर इज इक्वल टू E माइनस EC 2m स्टार बाई h बार स्क्वायर. तो जहां पे हमको K मिल रहा था यहाँ पे उसको हम E के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं. सो यू सी हियर अब हमको इस इक्वेशन को बेसिकली ये इक्वेशन हमको दे रहा है नंबर ऑफ यूनिक स्टेट्स इन द रेंज डी के रेंज में कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स अवेलेबल है, यूनिक स्टेट्स. तो उसको हम लोग के टर्म के बजाय ई के टर्म में लिखना चाहते हैं. तो वी गॉट दिस रिलेशन वेयर वी कैन रिप्लेस दिस के स्क्वायर और डी को कैसे रिप्लेस करें तो इस इक्वेशन को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया. सो वी गॉट 2k dk इज दिस. सो नाउ dk एंड k स्क्वायर दोनों का वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे. तो कंबाइनिंग दिस इक्वेशन वी गॉट dk को यहाँ पे हम ऐसे रिप्लेस कर दे रहे हैं एंड k स्क्वायर का जो भी वैल्यू यहाँ पे हमने k का रिलेशन पता किया है. सो इट इज सिंपल मैथमेटिक्स. k और dk को हम लोग इस इक्वेशन में रिप्लेस करने वाले हैं इस इक्वेशन की हेल्प से. तो दिस इज व्हाट इज बीइंग डन. यू सी दिस dk यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, k स्क्वायर वहां पे कैलकुलेट किया था और इसको हमने रखा और सिंप्लीफाई किया and we got this gk dk. You see the final equation v m star 2m star e minus ec to the power half by pi square h bar square de. And this is the form we wanted to prove. और यही हम लोगों ने सबसे पहले बात किया कि density of state is proportional to under root e or e to the power half. And here you see this relation comes in the picture. So this is density of a state. Density of a state means number of states per unit volume in this energy range is given by this, and it is to the power half. So power half means under root. So density of a state is proportional to under root e for this bulk material. तो ये डेरिवेशन है. अब डेरिवेशन थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है और थोड़ा सा इन्वॉल्व इसलिए है क्योंकि तुम लोग को जो क्वांटम मैकेनिक्स या बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस करने पड़े मुझे जो पहले से फैमिलियरिटी नहीं है जिसके बारे में, इसलिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है. तो लेकिन यू कैन सी हाउ वी आर गोइंग थ्रू दिस. देयर आर आई विल शेयर दिस स्लाइड्स ऑन LMS. आज ही मैं शेयर कर दूंगा तो उसको तुम लोग देखो. और इसमें कई सारा फिजिक्स में जब बेसिकली हम डेरिवेशन करते हैं तो बहुत डायरेक्टली मैथमेटिक्स नहीं होता है और क्वांटम मैकेनिक्स बहुत एग्जैक्टली करना पॉसिबल नहीं है. सो वी डू अ लॉट ऑफ अप्रोक्सीमेशन इन डेरिवेशन. लाइक यू सी व्हेन वी टॉक्ड अबाउट पार्टिकल इन बॉक्स वी रोट वेव फंक्शन लाइक दिस. तो वेव फंक्शन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है लेकिन हम लोग एक कंसेप्ट लिए कुछ कि साइन फंक्शन इज देयर एंड इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा वो सब चीजें हम लोग छोड़ दिए. एंड वी टॉक अबाउट लाइक दिस इज द बाउंड्री कंडीशन. दिस इज हाउ एंड फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स इनसाइड. फ्री इलेक्ट्रॉन एक्चुअली फ्री है नहीं, वहां पे कुछ पोटेंशियल है, इसकी वजह से इफेक्टिव मास का कंसेप्ट लिया. तो देयर आर अ लॉट ऑफ अप्रोक्सीमेशन, देयर आर अ लॉट ऑफ सेटिंग वी डू इन physics
to prove our points. तो बहुत सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं होता है डायरेक्टली, जैसे हम लोग 10+2 में जो भी कुछ प्रूव करते हैं तो वी टेक इट वेरी डायरेक्टली, सिंपल स्टेप टू स्टेप क्लियरिटी रहता है। तो यहाँ पे स्टेप टू स्टेप ऐसा क्लियरिटी नहीं है, मतलब अगर किसी को पहले से नहीं पता है तो वो ऐसे डेरिवेशन कर नहीं पाएगा, तो ये एक दिक्कत रहता है। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले बात किया था, डेंसिटी ऑफ स्टेट होता क्या है, एंड देन डेंसिटी स्टेट हाउ इट इज रिलेटेड टू एनर्जी, दिस वी हैव प्रूव्ड इट, बट to prove it we have to go to quantum mechanics